इससे पहले इस पॉडकास्ट में आगे बढ़े, आपसे एक गुजारिश है. A lot of effort goes into making these kind of videos, podcasts, and reels. So a simple like, share, subscribe, and a comment will give us a lot of motivation and encourage us to do better. And welcome to our special episode on Down Syndrome Awareness Day. This is part 2. On the first day, we highlighted the medical interventions, occupational therapy, speech therapy, and special education interventions. Today, we have yet another team of NRF panelists will focus on psychosocial and behavioral issues and cardiorespiratory and urinary incontinence issues. So let's start. Welcome Dr. Jyotsna, our senior consultant psychologist, Dr. Shalini, our senior physiotherapist, and Ms. Mihika Mittal, our child guidance counselor. So Dr. Jyotsna, Down Syndrome Day is coming up and it's on the 21st of March. So we wanted to ask you, what exactly are the changes, what are the kind of behaviors, or what are the kind of changes that you see in children with Down syndrome? And do you see, like a normal child, the changes happening or transitioning through childhood to adolescence to adulthood to middle age? Are the same changes, are the same behavioral patterns followed up, or what are the emotional upheavals that you come across in a child with Down syndrome? Monica, definitely the changes are there. The transition from the childhood to adulthood, then to the old age. हम बच्चे में जैसे ही हार्मोनल चेंजेस आते हैं एडल्टहुड में, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, mental changes are there. Same other things you can see in the Down syndrome children. And also psychosocial behaviors are there जो कि affect करते हैं उन लोगों को, and जो कि not visible, which are not much visible in child or in any other person, like the anxiety है, depression है उन बच्चों को, which is not seen visibly. But yes, behavioral changes can be seen in them, like when they are throwing tantrums, या वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, कोई चीज अगर आप उनको समझाना चाहते हैं वो नहीं दिखा रहे हैं. But definitely there are certain reasons for these behaviors और these changes. So वो behavior देखते हैं बच्चों के अंदर जब कोई ना कोई ऐसा इश्यू सामने नजर आता है जिसके कारण ये behaviors हमारे को उन बच्चों में नजर आते हैं. Especially when we talk about the neurological differences are there, definitely the environment which affects them a lot and the emotional turbulence, जो ups and downs हम उन बच्चों में ज्यादातर notice करते हैं. The behavior changes, emotional turbulence तब नजर आता है when they are not able to communicate properly as per the needs, the requirement of the area. जैसे कोई चीज अगर हम आप और मैं एक नॉर्मल बात करके बात को समझा सकते हैं, लेकिन उनमें अगर स्पीच इश्यूज हैं तो वो अपनी बात को ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. तो जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इट ऑफन लीड्स टू एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंड ऑल्सो वी कैन सी विड्रॉल सिम्टम्स इन सम ऑफ द केसेस, जहाँ पे वो बच्चे एक बैक सीट ले जाते हैं, अपना बात नहीं करना चाहते या अपने अंदर ही इस इमोशंस को दबा के रखना चाहते हैं. एंड अनदर फैक्टर इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि एक एरिया, जिस जगह पे अगर वो बच्चे अडेप्टेबल नहीं हैं और मे बी दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, मे बी देर आर 10 or 20 people sitting in the room which are very normal like any other human being, but वो लोग, उन लोगों में अगर कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी है एंड वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, so definitely उन लोगों को प्रॉब्लम लगती है, and which often leads to frustration, anxiety and everything like that. Okay. तो आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं ठीक से समझ पा रही हूँ, कि बिहेवियर्स और साइकोसोशल एस्पेक्ट्स में फर्क है. बिहेवियर्स अलग चीज होती हैं और साइकोसोशल, साइको इमोशनल कंपोनेंट वो अलग होता है. इज दैट व्हाट इट इज? जी बिल्कुल. साइकोसोशल एंड बिहेवियर आर डिफरेंट, टू डिफरेंट थिंग्स. साइकोसोशल लाइक इन एंजाइटी, डिप्रेशन, व्हिच यू कैन नॉट सी बट यू कैन फील दैट इन अ सेंस कि एक बच्चा नहाने, एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, एक फ्रेम ऑफ माइंड है जो अंदर ही होता है. और एंजाइटी लाइक वो फिजिटिवनेस होगी, उसकी उठना बैठना, एक इम्पेशेंट होना शुरू हो जाएगा, विच के तौर पे फिर बाहर नजर आ जाएगा. एंड टैंट्रम्स दिखाना, एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, घुसना नहीं उस जगह पे, तो वो बिहेवियर इश्यूज हम उन लोगों को बोलेंगे. यस. तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, बिहेवियरल इश्यूज अंदरूनी तौर पे जो बात हो रही है, जो चल रहा है माइंड में, दिमाग में जो चल रहा है,
वो बाहर जो बिहेवियर्स नजर आ रहे हैं उससे पता चल जाता है कि कुछ चल रहा है दिमाग के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो अंदर एक हमारे इंटरनल हमारे थॉट में हमारे उन लोगों में चल रहा होता है वो बिहेवियर्स के तौर पे नजर आ जाता है, बिकॉज कंट्रोलिंग पावर उस हिसाब से इमोशंस नहीं है उनके अंदर कि उसको कंट्रोल कर सके, या मे बी दे कैन मैनिपुलेट द थिंग्स। Looking out for his behaviors, which is a reflection of your internal state of mind, whether you're happy, you're sad, you're depressed. So those behaviors are what is externally visible. Yes, definitely. Great. So that's a good starting point. We'll come back to you, Dr. Jyotsna. डॉक्टर शालिनी, ये भी हमने देखा है, इनफैक्ट डॉक्टर प्रिया ने बहुत डिटेल में हमें समझाया था डे 1 में रिगार्डिंग कार्डियो respiratory problems, urinary incontinence issues in children with Down syndrome. Actually medical interventions, complications बहुत होते हैं। तो फिजियोथेरेपी में आप क्या करते हैं, क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, ये कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस जैसे बहुत कॉमन होते हैं, तो आपका रोल, फिजियोथेरेपी का रोल क्या है और क्या कॉजेज हो सकते हैं? Absolutely, individuals with Down syndrome often experience firstly urinary incontinence due to the low muscle tone known as hypotonia affecting the bladder control. Secondly, we see the cardiorespiratory difficulties because of the weak heart muscles, the low lung capacity, and the sedentary lifestyle. So basically, people with the Down syndrome, we see that their life affects so much because of the less bladder control. Bladder control issues can affect the self-esteem of the individual, and obviously the breathing control. Due to that, the energy level of the person is always low and the stamina is down. So we have to work as a physio both on the bladder muscles and the breathing techniques for the individuals. जैसे आपने कहा था कि रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए आप क्या फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करते हैं? और जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, उसमें आपने बहुत अच्छे से कहा कि ये सोशली अफेक्ट करता है, तो वो चीज़ तो हमारे चाइल्ड गाइडेंस काउंसलर, हम उनसे बात करेंगे, बट एग्जैक्टली जो एक्सरसाइजेज हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ जो है, जो होम प्रोग्राम के तौर पे भी पेरेंट्स को बताया जा सकता है, उस पर थोड़ा सा अगर आप हमें और रोशनी कर सकते हैं और For urinary incontinence, we focus on the core muscles, where we train the muscles for the strengthening so that bladder control comes in control. Secondly, we work on the posture of the patient so that their upright posture, the walk, and the strength of the muscles individually work for the bladder control. Second, we work on the pelvic floor exercises, the muscles of the pelvis, for that strengthening muscle which helps again for the good bladder functioning. ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, कौन कौन से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप रेगुलरली बताते हैं जो घर पे भी हो सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ हार्ट प्रॉब्लम होगी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी या इस टाइप की इनकॉन्टिनेंस होगी, तो जो डाउन सिंड्रोम वाला एडल्ट है या बच्चा है, वो बार बार तो आएगा नहीं एक्सरसाइजेस के लिए, क्योंकि तो ये होम प्रोग्राम पे आप अगर फोकस करके बताएं कि क्या कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिचुएशंस में। और कार्डियक तो जहां तक है मोस्टली इंटरवेंशन हो ही जाती है, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हो जाता है, बट फिर भी अगर कोई ऐसे उस दौरान जब तक सर्जरी नहीं हो जाती है बच्चे की, उस दौरान में कोई प्रिकॉशंस आप बता सकते हैं कि अगर बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होम प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने चाहिए? ब्लैडर के लिए तो आपने ऑलरेडी बता दिया है। For like cardiorespiratory difficulties, we train the diaphragmatic muscles of our body. डायफ्राम क्या होता है? What exactly is diaphragm? Diaphragm are the upper chest muscles we have, and the lungs. So we train the upper, lower, and middle for the breathing exercise, so that जो हमारे lungs के muscles हैं वो strong बनेंगे, जिससे कि breathing will be more easily. Secondly, we look for the posture. If patient has to be like upright so that the lobes will get the maximum air in the lungs, so that then also the breathlessness will reduce and the breathing will be proper in terms of तो that. हमने देखा कि एक स्पायरोमीटर करके भी डिवाइस होती है, उसका कोई यूज है इन Yes. एक्टिविटीज में? Yes, it is very important, spirometer, because you have got the degrees of the lung volume, so that we as a physio we know
how much is the capacity of the patient, how much a patient is inhaling at the same time, and exhale ratio. So we work on that ratio. If we see that the inspiration and expiration level is low, इंस्पिरेशन माने हम जब सांस लेते हैं अंदर की Breathe तरफ, in. yes, breathe in, and exhalation, is when you breathe breathe out. out. Yes. Then we have aerobic training, in which we say patient to walk minimum of 20 to 30 minutes a day. Okay. Then we train on them on cycling, like for 10 to 15 minutes. And then we have स्पायरोमीटर, बेसिकली एक डिवाइस होता है विच हेल्प अस इन नोइंग कि लंग्स में आपकी कितनी स्ट्रेंथ है. So with that device we come to know as a physio, and then we start training our breathing muscles with different breathing exercises, abdominal breathing, diaphragmatic breathing. So we focus on the capacity where we see how much is the inhalation, exhalation in the individual. All right. Thank you so much. That's really wonderful. Meka, coming to you, डॉक्टर ज्योत्सना ने अभी हमें बताया कि जो चेंजेस होती हैं, जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आप जनरली आप देखते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में? और अभी डॉक्टर शालिनी ने भी बोला कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से, जनरली कार्डियोरेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से, सोशल लास्ट टाइम भी हमने सुना था जब डॉक्टर स्तुति ने बोला था कि कम्युनिकेशन की वजह से lot of social issues do stem up. There is a lack of self esteem, confidence low होता है. तो किस तरह से वो आपको पता चलता है इन अ क्लिनिकल सेटअप कि ये चीजें शायद चल रही हैं, और किस तरह से आप उसको हैंडल करोगे, किस और पेरेंट्स को किस तरह से आप हैंडल करोगे? बिकॉज वी हैव सीन कि बच्चा तो फिर भी हैंडल हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो भी नहीं कोप कर पाते हैं. ठीक है, तो पहले में जैसे आपने बोला कि बिहेवियर्स क्या-क्या होते हैं, तो पहले मैं उसके बारे में बताऊँगी कि बिहेवियर्स बेसिकली बच्चों में देखने को मिलते हैं कि बच्चा कम्युनिकेशन अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो बेसिकली एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि कोई समझ नहीं पा रहा है उसकी, ना वो बोल पा रहा है, उसके जेस्चर्स भी कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वो हिटिंग, बाइटिंग उस फॉर्म में उनका बेसिकली एक्सप्रेशन होता है फिर, जो वो बताना चाहते हैं या जो भी कहना चाहते हैं. या फिर बच्चा जैसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, तो एक तो रहता है कि हाँ मतलब मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे कोई समझेगा, तो वो फिर उनके सेल्फ एस्टीम उसमें भी मतलब आता है कि वो बेसिकली अपने आप को कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हैं, अपनी नीड्स को या अपने डिजायर्स को कुछ भी नहीं बता पाते. तो इसका इम्पैक्ट पेरेंट्स के ऊपर क्या है, फैमिली के ऊपर क्या? तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर यही इम्पैक्ट होता है कि बेसिकली हमारा बच्चा कभी ऐसा मतलब कर पाएगा, बोल पाएगा, कुछ समझा पाएगा, या ऐसे ही उसके बिहेवियर्स रहेंगे, या मतलब स्कूल में कभी वो सेटल हो पाएगा, तो मतलब हमें बार बार स्कूल चेंज तो नहीं करना पड़ेगा. तो ये पेरेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट रहता है. इवन फैमिली के ऊपर भी ये रहता है कि सबसे पहले तो वो बच्चे को ही नहीं समझ पाते हैं, तो उनको यही रहता है कि ये बच्चा ही नहीं मतलब आगे मतलब मैनेज कर पाएगा, ये बच्चा मतलब अलग तरीके से डेवलप होगा, नॉर्मल से अलग डेवलप होगा, तो वो चीज वो समझ ही नहीं पाते हैं. तो यहीं पे मतलब मेन रोल आता है सबसे बड़ा, जैसे एक बच्चे को समझने के लिए, कि पेरेंट काउंसलिंग का. जो चीज सबसे पहले तब स्टार्ट होती है जब हम बच्चे को डायग्नोस करते हैं. तो पहला स्टेप पेरेंट काउंसलिंग का यही रहता है कि हम पेरेंट्स को ये समझाएं, ये बताएं कि एक्चुअली बच्चे को क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, वो चीज क्यों अलग हटके बाकी बच्चों से कर रहा है. ऐसा नहीं है कि वो डेवलप नहीं करेगा प्रॉपर्ली या बच्चे में कुछ बहुत ज्यादा कमी है, इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा सा मतलब हर बच्चे के अपने अलग स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस होती हैं. तो इस बच्चे की भी कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ लिमिटेशंस है. ये बच्चा थोड़ा अलग मतलब अलग तरीके से डेवलप करेगा, लेकिन उसका एक पाथ अलग अलग होगा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का. ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा कम रह जाएगा बाकी बच्चों से या कुछ है. किसी हो सकता है कि उसकी कुछ स्ट्रेंथ अलग हो, किसी और एरिया में कुछ बहुत अच्छा कर ले. इसमें सिबलिंग्स का कोई रोल है? बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे पेरेंट काउंसलिंग में एक चीज बोलते हैं, पीयर सपोर्ट की भी बात करते हैं. तो सिबलिंग्स का सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि बच्चा, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चा दूसरों को देख के सीखता है. अगर सिबलिंग्स ही मतलब ऐसा हो कि वो एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, तो बच्चा वही चीज सीखेगा भी. अगर सिबलिंग्स ही ऐसे हैं कि बच्चे को नहीं समझ मतलब जो
मतलब उसका भाई बहन है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, कि उसको मतलब एक नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, नेगेटिव बिहेवियर मॉडल कर रहे हैं, बार बार पे मतलब उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपने साथ, तो बच्चा फिर वही है तो फिर सोशल आइसोलेशन में चला जाएगा कि मतलब भाई मेरा जो ब्रदर सिस्टर है वही नहीं समझ पा रहे हैं, तो मतलब बाकी जो पीयर सपोर्ट है मतलब पीयर ग्रुप है वहाँ पे भी मैं नहीं मतलब मैनेज कर पाऊंगा अपने आप को। जब एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा फैमिली में आता है, जो सेट कि शुरू शुरू में ही वो इम्पैक्ट हो जाता है, जब पता चल जाता है कि बच्चा थोड़ा अलग है, तो आपको क्या लगता है वहीं से अगर काउंसलिंग शुरू हो जाए तो वो थोड़ा इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ना कि बाद में अगर जैसे जैसे बिहेवियरल इश्यूज होते हैं या जैसे डॉक्टर ज्योत्सना ने बोला कि इश्यूज होते हैं तब काउंसलिंग शुरू होती है, तब मैनेजमेंट शुरू होता है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इस दैट? हिसाब से काउंसलिंग, पेरेंट काउंसलिंग तब से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए जब पेरेंट्स को पहले बार पता चलता है कि हाँ बच्चे में कुछ मतलब दिक्कत है या मतलब कुछ तकलीफ है या बच्चा उसमें डेवलप नहीं कर पा रहा है, तब से ही पेरेंट काउंसलिंग अगर होगी तो बेसिकली उतने बिहेवियर शायद बढ़ेंगे ही नहीं। पेरेंट्स को तभी पता चल जाएगा कि बच्चे को कैसे मतलब हम उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या लिमिटेशंस हैं और कहाँ किस तरह से उनको सपोर्ट स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं बच्चे के हिसाब से। तो अगर पेरेंट्स को पहले ही स्टेज पे हमने बता दिया कि उनको क्या बच्चे के हिसाब से टेलर मेड टेक्निक्स बनानी है, बेसिकली उनको वहीं पे ट्रेन कर दें, तो वो आगे जाके उतने बिहेवियर इशू शायद आए ही ना, कि बच्चा मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अगर हमने पेरेंट्स को पहले ही बता दिया, पहले ही सिखा दिया कि बच्चे का हो सकता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट थोड़ा डिले में जा रहा है, तो उसको डिफरेंट वेज आपको मतलब सिखा सकते हैं कि वो कैसे अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकता है, आइदर थ्रू फ्लैश कार्ड्स और समथिंग। तो वही अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन आ जाता है डेफिनेटली। सो डॉक्टर ज्योत्सना, मीका का बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही थी कि जब आपको पता चल रहा है कि बच्चे में ये बिहेवियर्स आ रहे हैं और पेरेंट आपके पास आके बोलते हैं कि हमसे तो नहीं संभाला जा रहा है, हम अकेले हैं, हम क्या क्या करें, हमारे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें दूसरे बच्चों को देखना पड़ता है, तो आपकी एडवाइस क्या रहती है उनको? फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली का क्या रोल होता है इन सब चीजों में, जहाँ पे एक स्पेशल चाइल्ड होता है घर में, या एक जो चाइल्ड फिर आगे जाके एडल्ट भी बनता है, ओल्ड भी हो जाता है, तो फैमिली सपोर्ट, नॉट जस्ट पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स की बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट इमीडिएट फैमिली, बट जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनका भी कोई रोल है, उनका भी कोई सपोर्ट मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। सबसे पहले ही बात तो एक्सेप्टेंस, जितना हम जल्दी एज अ पेरेंट, एज अ सिबलिंग, एज अ फैमिली एक्सेप्ट कर लेंगे, द पाथ विल बी मोर इजियर फॉर एवरीबडी। उस बच्चे को एक्सेप्ट करना, बच्चा अपनी चॉइस से इस तरीके से इस हालात में नहीं आया, इट इज जस्ट बाय एनी ऑफ द रीजन द चाइल्ड हैज बीन born in such a situation, but now what can be done, इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द फैमिली जो कि इस जगह पे आके रोल प्ले करती है। एंड जहाँ तक एक्सटेंडेड फैमिली का मैटर है, तो मुझे लगता है काउंसलिंग सिर्फ पेरेंट्स को लेके नहीं है या सिबलिंग्स को लेके नहीं है, इट इज जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ द फैमिली है, मे बी द कजन्स whom they are very close, मे बी लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इज एन एडेड बेनिफिट, क्योंकि अगर सारे मिलके एक हाथ काम कर रहे हैं और 10 हाथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली फर्क ज्यादा पड़ता है और उससे बच्चे को ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है और उतना ही उसकी सोशल कम्युनिकेशन, सोशल बॉन्डिंग डेवलप होती है, एंड अडेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी विल बी मोर इजियर फॉर अ चाइल्ड एट दैट स्टेज। तो जैसे हमने डॉक्टर शालिनी से भी पूछा था कि कुछ होम प्रोग्राम या कुछ बता सकते हैं जो एडोलेसेंट्स हैं या जो एडल्ट्स हैं डाउन सिंड्रोम के साथ, या उनके पेरेंट्स को, अगर मान लो कोई बच्चा या कोई एडल्ट जो है बिहेवियरल इशू दिखा रहा है, चीजें थ्रो कर रहा है या खाना नहीं खा रहा है या कुछ ऐसी दिखा रहे हैं बिहेवियर्स जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं, तो क्या आप, और एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्ट्रेस रिलेटेड, देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट कि वो उसको अफेक्ट कर रहा है, तो वो स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ आप सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को या एडल्ट विद डाउन सिंड्रोम को? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ऐसे बिहेवियर इश्यूज ना आए, तो इट्स बेटर कि वी शुड हैव अ डेली रूटीन, द शेड्यूल फॉर द चाइल्ड, एज इफ हम एक क्लास में जाते हैं तो वी हैव अ टाइम टेबल दैट वन टीचर इज कमिंग आफ्टर दिस, सो उसी तरीके से अगर एक प्री प्लान शेड्यूल हमारा रहेगा तो वो ईजी रहता है उस बच्चे को भी अडेप्ट करने के लिए, बिकॉज चेंज उनको लाने के लिए, उनको चेंज में डालने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर फोकस एंड अ प्रॉपर प्लान चार्ट।
एज ई से कि एक रोड मैप होना चाहिए उन बच्चों के लिए कि आप रेगुलर उन बच्चों को अगर गाइड करते रहेंगे कि ये आपका आज से ये रूटीन है, आज ये करना है, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। एंड इन केस अगर कोई चेंज आपने उनको दिखाना है तो यू कैन यूज द विजुअल आर्ट, विजुअल क्लिप्स फॉर देम। एक सोशल स्टोरीज के थ्रू आप उनको चीजें, चेंजेस दिखा सकते हैं जो कि उनको इजीली समझ आ जाएंगी और उसको वो रिलेट करके अडेप्ट कर सकेंगे बहुत आराम से। दूसरा ये कि अगर अगर बच्चा जितना ब्रीदिंग टेक्निक्स, जैसे डॉक्टर शालिनी ने बोला था हम ब्रीदिंग पे काम करते हैं, अगर बच्चा योगा या ब्रीदिंग टेक्निक्स पे हम अगर उन बच्चों के साथ काम करते हैं तो उनकी एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन जो होती है उसको काम डाउन करने में बहुत ईजी रहेगा। एंड more important is giving them a positive reinforcement rather than focusing on the negative part कि आज तूने ये नहीं किया। अगर एक बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है तो उस पर फोकस हम करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आप घर में अगर कोई खाना बना रहे हैं और अगर आपको तारीफ मिल रही है तो डेफिनेटली एक खुशी होती है, तो उसी तरीके से वो बच्चे भी उसी चीज के लिए एक वेट करते हैं। मे बी एक्सप्रेस वो शायद खुशी बोल के ना कर पाए लेकिन अपने बिहेवियर से जरूर दर्शा देते हैं कि हमें ये अच्छा लग रहा है। हमने देखा है कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं या एडल्ट हैं वो जनरली बहुत खुश रहते हैं, दे आर वेरी हैप्पी पीपल, सो एंड वेरी सोशली आल्सो दे आर वेरी कंफर्टेबल। वो दोस्ती करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, सो दे आर एक्चुअली अ वेरी फ्रेंडली, are really very friendly and they accept you the way we accept them. yes, they want to be included in everything. They want to be included in the society. Yeah. So before, of course, a lot of discussions have happened now, but before we wind up, one key takeaway from each one of you, Dr. Tutsa. सबसे पहले as per me I think the positive reinforcement and the parental, they believe as a role model जिसको हम कहते हैं, जितनी calmness पेरेंट्स के अंदर रहेगी, जितना पॉजिटिव एक पेरेंट रहेंगे एंड फैमिली रहेगी, उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम बच्चे को दे सकेंगे। एंड दैट वुड बी वेरी डेफिनेटली अ positive thing for a child to be included in a society. That is, I think that is the main thing. We need to acknowledge this thing and acknowledging their things and accepting कि वो जिस तरीके से भी हैं, जो भी उनकी स्ट्रेंथ है उन पे काम करें rather than over expectations हम उनसे करें। So rather than over expecting anything, accept the way they are. So it would be more easier for everybody to handle. Shalini, आपका एक key takeaway? Physiotherapy is as important as cognitive and emotional development of an individual. So my recommendation will be like we have to motivate those individuals to go outside, play in very take participate in sports. Even in home, they should like training their breathing exercise, their core stability exercises, and obviously overall well-being for the overall health. Yeah. Thanks. Mika? जैसे कि डॉक्टर ज्योत्सना ने कहा कि हर बच्चे के अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स होते हैं, तो बेसिकली हर बच्चे की अपनी एक ट्रेजेक्टरी होती है, हाउ दे डेवलप। तो एक सेट पाथ ना फॉलो करके अगर बच्चा दूसरी तरह से डेवलप कर रहा है तो पेरेंट्स का ये है कि वो एक्सेप्ट मतलब करें और पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे वो बच्चा बेसिकली अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पे ग्रो कर सके। Thank you so much. Thank you. A beautiful mind, a beautiful heart, and a beautiful soul. That's our Down syndrome person for you. So if you found this video useful, do like, share, and subscribe. Until our next episode, stay tuned, keep learning, keep growing. Let the talk matter. Thank you.